Hello dear students, welcome in this YouTube channel. Today in this video we'll solve one complete sample paper for class 9 subject mathematics, and this is according to the latest pattern 2020-21. So already we have solved 3 papers and this is our 4th paper. So instructions I gave you in that papers. Now we should start directly from the question 1. So let's start. So part A, section 1 is first question. If square root 2 is equal to 1.4142, then find the value of root 2 minus 1 over root 2 plus 1 whole under root. So इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले इसकी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर. सो ये देखिए मुझे कितने से ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट 2 माइनस 1 से, ठीक है. सो दैट डिनोमिनेटर में आपका फॉर्मूला बन जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो लेट्स सी व्हाट विल बी देयर इन द न्यूमिनेटर. इट इज a minus b whole square, right, because these both are same. So here formula is a square minus b square. So root 2 square is 2 minus 1 square is 1. So let's see what will be left. So root 2 minus 1 whole square over 1. So no need to write 1. Now see here, square and square root cancel. So your answer is root 2 minus 1. Now we can fill the value whatever is given of root 2, that is 1.4142 minus 1. You can do, if you subtract these you will get 0.4142 answer. So the next part or option of it is find the value of 8 root 15 divided by 2 root 3. Okay, this is, so you can cancel here, 2 1s are 2 4s are, right. So for root 15, can I write root 15 as root 5 into root 3? Okay, so root 3 as it is down in the denominator. So root 3 cut. So 4 root 5 is the answer of this OR part. So the next is find the value of 256 power 0.216. So 256 power 0.16 into 256 power 0.09. Okay, so can I write, can I use here one exponent law? Bases are same, powers will be added, like x power a into x power b means x power a plus b. So powers को add कर दो because base same है इनके. So 0.16 plus 0.09. So it becomes 256 पावर, इन दोनों को ऐड कर दो, इट बिकम 0.25, राइट. सो 0.25 को तो आप डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो 25 ओवर 100, है ना. 25 ओवर 100 क्या होता है, 1/4 कटिंग करके. तो चलिए 256 को भी आप लिख दो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, लाइक 4 पावर 4 होता है ना 256, दैट यू कैन सी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये आ जाएगा एंड 1/4 तो आपका है ही, 4 cancel and just 4 is answer here. So next is if a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus ca is equal to 40, then find the value of a square plus b square plus c square. So यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों ही पार्ट्स आ जाएं, है ना. वो कौन सा फॉर्मूला है, लाइक a plus b plus c whole square, that you can see, that is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc. so 2 कॉमन ही ले लो, 2ab plus 2bc plus 2ca. so 2 मैंने कॉमन ले लिया. तो ये फॉर्मूला हमारे पास है. तो जो जो वैल्यूज आपके पास हैं वो फिल कर दो. सो a plus b plus c की वैल्यू है 9. तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यू नीड टू फाइंड आउट ओनली. सो इसको तो आप एज इट इज लिख दो प्लस 2 इंटू, एंड इसकी वैल्यू है 40. So 2 into 40 is 80. So ये बन गया 81 is equal to a square plus b square plus c square plus 80, right. So ये 80 यहाँ चला जाएगा, तो 81 minus 80 कितना हो जाएगा, 1. So a square plus b square plus c square is equal to 81 minus 80, that is 1 answer. Okay, so next is give an example of polynomial which is binomial of degree 20. तो सबसे पहले तो बाइनोमियल क्या होता है,
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों उसको बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, लाइक x, सिर्फ x है, सो इट इज मोनोमियल। और जिसमें दो टर्म्स हैं, जैसे x + 2 हो गया, तो इट इज बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म्स हैं, सपोज x² + 2x + 5 हो गया, तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा बाइनोमियल लिखना है, मीन्स उसकी दो टर्म्स हों और डिग्री उसकी 20 हो, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी 20। सो दो टर्म्स ऐसे, तो लिखो x⁻20 कर दो प्लस कुछ भी कर दो, 5 लिख दो, है ना। दिस इज बाइनोमियल ऑल्सो बिकॉज दो टर्म्स है और डिग्री इसकी 20 है, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 20 हियर, राइट। सो द नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। If x/y is plus y/x is equal to -1, then find the value of x³ minus y³। ठीक है, so here it is given and this we need to find out. So first of all जो given है उसमें से हमें क्या मिल सकता है, you take LCM as their product, xy is LCM, so x into x² बन जाएगा यहाँ पे, प्लस y into y is y² बन जाएगा, that is equal to -1, so क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो x² प्लस y² और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बन गया -xy। अब इस -xy को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, सो x² प्लस y² ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस xy इज इक्वल टू, ये नथिंग लेफ्ट तो 0। सो इक्वेशन नंबर 1 कर दो इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपको निकालनी है वैल्यू, वो हमारे पास एक फॉर्मूला है a³ माइनस b³ का ना, यू नो दैट इज, इसका आंसर है a - b मीन्स x - y into x² plus y² plus xy. This is its formula, ठीक है। This is from NCERT book exercise 2.5. I think question number 9 is there. Okay, so you can check that. So देखिए यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू तो 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, देखो यहाँ से using 1, तो x - y into ये सारा 0 बन गया, तो 0 into something is 0. So it means x³ minus y³ is 0, right? So answer is 0. The next is, what is the 0 of the 0 polynomial? You know what is 0 polynomial otherwise? This is 0 polynomial, ठीक है। तो 0 polynomial की 0 कैसे निकालनी है? You know, किसी भी polynomial की जब हम 0 निकालते हैं तो हम उसको 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x तो है, तो आप ऐसे x लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इट इज वैलिड फॉर एवरी रियल नंबर, है ना। आप यहाँ पे कुछ भी भर दो, ये इक्वेशन वैलिड होगी। x को चाहे 1 भर दो, है ना, तो भी ये वैलिड है, x को 2 भर दो तो भी ये वैलिड है, 0 = 0 ही आना है, ठीक है। तो 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज एवरी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि ये इक्वेशन तो हर जगह वैलिड है, चाहे x को जो मर्जी भरते जाओ आप, दिस इज वैलिड। सो 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज एवरी रियल नंबर, क्लियर। सो थोड़ा सा और बताऊं मैं आपको, व्हाट इज 0 ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। सो लीव इट, बट लेट्स फाइंड आउट इट्स डिग्री, है ना। व्हाट इज डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी, अगर हम इसके पास x नहीं है तो हम इसके साथ x⁻0 तो लगा ही सकते हैं ना, तो इट्स डिग्री इज 0। एंड यू नो व्हाट इज डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, है ना। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, x की पावर कितनी लगा सकते हैं हम, यहाँ पे 0 लगा देंगे तो भी चलेगा काम, 1 लगा देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0 तो 0 रहेगा। तो मीन्स डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड एंड डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। So next is, find the value of a for which the polynomial this is divisible by 1 minus 2x. So हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है such that ये सारा पॉलिनोमियल जो है वो इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर इसका 0 आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 1 minus 2x की 0 निकाल देंगे, है ना। तो देखते हैं क्या इसकी 0 आती है, जिसकी भी 0 निकालनी उसको 0 के इक्वल कर दिया। So -2x is equal to -1, माइनस कट, सो x is equal to 1/2। अब हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे 1/2 भर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। क्यों कर देंगे, क्योंकि जब हम x को 1/2 भरेंगे ना, तो दैट विल बी द रिमाइंडर व्हेन यू विल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल विद दिस पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर शुड बी 0, तो उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। सो 2 into x⁻4 मीन्स 1/2 power 4 माइनस a into 1/2 power 3
प्लस दिस इज 4 इंटू 1/2 पावर 2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या बन गया, 2 इंटू 2 पावर 4 होता है 16, राइट। तो 2 इंटू 1/16 माइनस a इंटू 1/8 बन जाएगा प्लस 4 इंटू 1/4 बन जाएगा प्लस 2 2 कैंसिल, 1 इज लेफ्ट, 1 इज देयर, हेयर ऑल्सो 1, हेयर ऑल्सो 1, सो इट इज 1/8 हेयर। सो 1/8 माइनस a ओवर 8 प्लस a भी 4 4 कट गए, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बच गया आपके पास। सो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास। आप एक काम करो, यू कैन टेक एलसीएम हेयर, सबका एलसीएम ले ही लो या फिर इकट्ठे कर लेते हैं पहले। 1/8 माइनस a ओवर 8 प्लस ये 3 बन जाएगा। अब सबका ये एलसीएम ले लो 8, तो क्या बन गया 1 माइनस a प्लस 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। ये 8 तो यहाँ 0 बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। सो 1 माइनस a प्लस 24, और यू कैन से 1 प्लस 24 इज 25 माइनस a इज 0, सो a विल बी 25। okay, so the next is check whether the point this a comma minus a always lie on this line। so हमारी लाइन है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट हमें चेक करना है a कॉमा माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, x को a भर देंगे, y को माइनस a भर देंगे। इस इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशन तो हम बोलेंगे कि दिस विल बी ऑलवेज लाई ऑन दिस लाइन। सो x को a भर दो प्लस y को माइनस a भर दिया। इज इट आंसर 0? यस, 0 इज इक्वल टू 0, सो विच इज ट्रू, है ना। तो बिल्कुल ट्रू है। सो इट मीन्स दिस पॉइंट इज ऑलवेज लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। तो देखो 2,14 से होके एक लाइन हमें बतानी है, ठीक है। आपको पता है एक पॉइंट से होके कितनी लाइंस पास कर सकती हैं, ये पॉइंट है, कितनी लाइनें से पास कर सकती हैं इससे होके, अनलिमिटेड, हजारों लाखों करोड़ों, नोबडी नोज हाउ मैनी, अनलिमिटेड। देखो बहुत सारी लाइंस ये क्रॉस कर सकती हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ एक ही लिखनी है ना, राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक ही लिखनी है। तो देखो इसका x पोर्शन है 2 एंड y पोर्शन है 14, है ना। x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 14 है। तो कोई रिलेशन ले आओ x और y के बीच, दैट इज सपोज x प्लस वाई कर दो। तो देखो व्हाट इज x प्लस वाई, 2 प्लस 14 कितना होता है 16। तो ये इक्वेशन बन गई लाइन की। और भी बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं, x माइनस वाई कर दो चाहे, तो 2 माइनस 14 माइनस 12 आ जाएगा। या 2x प्लस वाई कर दो, देखते हैं कितना था, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 14 16 आ जाएगा। सो मैनी लाइन्स यू कैन फाइंड आउट बाय गिविंग द रिलेशन बिटवीन x एंड y, एनी रिलेशन यू गिव एंड राइट द आंसर इन फ्रंट, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 7x प्लस वाई, तो 7 इंटू एक्स कितना हो गया, 14 प्लस 14 28 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। सो मैनी इक्वेशंस वी कैन राइट हियर। नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ। आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन यू कैन ड्रॉ। नेक्स्ट, इन द फिगर इफ AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD, देखो BAD एंगल कहाँ है, BAD एंगल ये है ना, तो AC जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों ही छोटे छोटे एंगल बराबर हैं आपस में, बिकॉज AC बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके फाइन। AB 3 सेंटीमीटर, हाँ जी ये 3 है, AC 5 है एंड CD आपको निकालना है, और ये 90 डिग्री दिया है। तो बच्चों क्योंकि देखो ये 3 है ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है ना ABC ट्रायंगल में, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये 4 आ जाएगा आपका, बिकॉज वी नो 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये 4 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, ऐसे लगा दो, दिस इज इक्वल टू RHS लगा दो चाहे, है ना, RHS भी लग जाएगी ना। राइट एंगल दोनों ट्रायंगल्स का, हाइपोटेन्यूज कॉमन है दोनों का, ठीक है। नहीं RHS भी नहीं लगनी, कौन सी लगाओगे, AAS, सॉरी इट्स रियली सॉरी, AAS लगेगी ना। राइट एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, व्हाई दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, गिवन दीज आर, है ना, बिकॉज AC बाइसेक्टर है एंड 5 दिस सेंटीमीटर कॉमन, है ना। तो बन गया एंगल
angle side. So by AAS these two triangles are congruent. Hence अगर आपका BC जो है वो 4 है तो आपका CD भी 4 होगा by CPCT, बिकॉज ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इनके बराबर ही होने हैं. तो ये 4 तो ये भी 4. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस B जो है वो 65 डिग्री है, B प्लस C 140 है. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल. सो लेट्स डू. सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री. अब A प्लस बी यहां पे दे रखा है 65, भर दो 65 A प्लस बी को. यहां से हमारा आ जाएगा C एंगल. ठीक है, C एंगल कितना आ गया आपका? C आ गया 180 से 65 माइनस कर दो. ठीक है, 115 आ गया जी C एंगल. अब बेटा C एंगल 115 आ गया यहां पे, तो यहां पे B भी आ जाएगा आपका. तो B प्लस C, C इज 115 इज 140. सो एंगल B बन जाएगा 140 से अब 115 माइनस कर दो. सो ये बन जाएगा 25 डिग्री. तो ये C हो गया, ये आपका B हो गया. A आप ऐसे निकाल दो, चाहे यहाँ भर दो. B की वैल्यू 25 डिग्री यहाँ भर दो, है ना. तो एंगल A आ जाएगा 65 में से 25 आप माइनस कर दो. सो यू विल गेट 40 डिग्री. सो दिस वे विल फाइंड ऑल द 3 एंगल्स. ठीक है, और आप चेक भी कर लो, इन सब का सम 180 आना चाहिए, है ना. 115 प्लस 25 कितना होता है? 140 प्लस 40 180. yes it is there. So you can check your answers side by side so that your marks will not be cut in the exam. So अगला है क्वेश्चन. if parallelogram PQRS क्या बोलते हैं ये, if PQRS is a parallelogram then find angle P minus angle R. ये देखिए ये पैरेललोग्राम है PQRS. एंगल P माइनस एंगल R निकालना है. आपको पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो इक्वल माइनस इक्वल क्या बन जाएगा? 0. नेक्स्ट इज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, डायगोनल्स जो है इस पैरेललोग्राम के आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर. अच्छा ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. So it's not always perpendicular to each other. So we cannot say that diagonals of parallelogram are perpendicular to each other. This is in the special type of parallelogram, like a square, like a rhombus. Here these are perpendicular. Otherwise, in general parallelogram, perpendiculars are not diagonals are not perpendicular. So this is not true. This is false. Next is द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई. देखिए एक आर्क है, मान लो ये आर्क है और 2 रेडियाई हैं ये. ठीक है, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं? ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर. व्हाट इज कॉल्ड दिस? दिस इज कॉल्ड सेक्टर. ठीक है, द रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर. नेक्स्ट इज स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम. तो व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम सेज दैट, अगर हम पहले हम बोलेंगे हिंदी में फिर आपको बताएंगे स्टेटमेंट इंग्लिश में. ठीक है, तो देखिए अगर हम ट्रायंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, मान लो D जो है वो AB का मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है. अगर हम इन 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बनती है ना DE, दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड दैट इज BC एंड हाफ ऑफ BC. ठीक है, तो DE जो होगी वो BC के हमेशा पैरेलल होगी और BC का हाफ होगी. तो नाउ स्टेटमेंट डिफाइंस दिस दैट इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of 2 sides of a triangle is always parallel to the third side and half of it. ठीक है, the next is AD is a diameter of the circle and AB is a chord. So ये बनाना पड़ेगा हमें, तो चलिए इसको बनाएं. So it is AD is a diameter of the circle. So पहले हम बना ही लें diameter. ठीक है, सो डायामीटर अगर हम बनाएं तो ये बना दिया हमने डायामीटर. सपोज AD इज अ डायामीटर. ठीक है, एंड AB इज अ कॉर्ड और AB साथ में एक कॉर्ड है, तो AB हम कॉर्ड भी ड्रॉ कर देते हैं. चलो AB एक हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी. अब नेक्स्ट इज AD 34 है, ये AD है तो ये 34 है. 34 मीन्स ये 17 होगी रेडियस. ठीक है, AB 30 है,
तो ये फुल ए बी इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर। सो जो ए बी है ये इसका सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, है ना। ये डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, ये होती है डिस्टेंस। तो वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये 30 है तो ये 15 बन जाएगी, है ना। अब ये 17 है, ये 15 है, पाइथागोरस से आप ये निकाल दो डिस्टेंस। सो दिस विल बी 8 बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये देखिए दिस इज पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज है आपका, ये परपेंडिकुलर मान लो, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस इज 15 स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 17 स्क्वायर 289। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को माइनस कर दो 64 आ जाएगा एंड पी विल बी 8। सो डिस्टेंस ऑफ दिस chord AB is 8 centimeter. The next is in triangle ABC and DEF बनानी पड़ेंगी आपको triangles ये, तो let's draw these triangles. Okay, so triangles are ABC and DEF. Because figure draw किए बिना क्वेश्चन को समझना मुश्किल होता है, तो dear students always draw the figure before solving it. So whenever it is required. ए बी इज इक्वल टू डी एफ, ए बी जो है वो डी एफ के बराबर है ना, कट कर दिया। देन ए एंगल डी के बराबर है, ये एंगल के बराबर है, ठीक है, कट कर दिए। ओके, द टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस इफ व्हाट। अब इनमें एस ए एस कब लगेगा, है ना, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, राइट। तो देखो ये साइड आ गई, ये एंगल आ गया, माइट बी दिस साइड ओनली वी नीड, है ना, एस ए एस तभी लगेगा ना, एस ए एस। तो यहां पे ए सी किसके बराबर आना चाहिए, एस ए इसके बराबर, डी ई के बराबर, तो ये होना चाहिए आंसर। अगर ए सी इज इक्वल टू डी ई आगे जाके तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ऐसे ऐसे। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल एंड द हाइट रिमेन्स सेम। ये देखिए, सपोज करो सिलेंडर की रेडियस आर है एंड हाइट एच है, ठीक है। अब नई बात क्या कर रहा है ये, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल, तो अब की रेडियस 2r कर दी हमने एंड हाइट रिमेन्स द सेम, हाइट h ही रही। व्हाट विल बी हैपन टू वॉल्यूम, तो देखते हैं इनके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ता है। तो वॉल्यूम क्या होएगा इस सिलेंडर का, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका देखते हैं, पाई आर स्क्वायर मीन्स 2r का होल स्क्वायर एच। सो लेट्स सी, ये बन गया 4r स्क्वायर एच, तो ये 4 बाहर आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम 4 टाइम्स बढ़ गया, देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच था, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो इट सेज दैट व्हाट हैपेंड टू इट्स वॉल्यूम, सो वॉल्यूम becomes 4 times. You write the answer, its volume becomes 4 times. Next is to convert cubic meter to liter we multiply it by what. अगर बच्चों हमें मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। You should know that 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो मीटर क्यूब को जब लीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसके साथ में एक चीज़ और बताऊं आपको, अगर आप घर पे भी ना 1 लीटर का कंटेनर तैयार कर सकते हो। कैसे तैयार करोगे, सपोज करो आपने ना एक शीट का स्क्वायर काट लिया ऐसे, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर काट लिया, राइट। अब ऐसे ऐसे 5 स्क्वायर और काट लो और उनको जोड़ दो और क्यूब बना दो। ऐसा क्यूब बना सकते हो आप जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर 10 हो साइड है, बना सकते हो ना। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया साइड इंटू साइड, कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इसमें अगर आप पानी भरोगे या मिल्क भरोगे तो इसमें 1 लीटर मिल्क आएगा, घर पे बना सकते हो आप, ठीक है। सो इसका मतलब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर बनता है, ठीक है। वैसे अगर आप मीटर की शीट काटो, एक स्क्वायर मीटर का एक स्क्वायर काट लो, ऐसे 5 स्क्वायर और काट लो, ऐसे जोड़ दो उनको, तो बन जाएगा इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर क्यूब। इसमें पानी भरोगे तो 1000 लीटर पानी आएगा, 1000